Okay, friends, now we start part B. You know that very well, part 7B. But before moving towards the next part, you know that very well, in the last part we discussed 3.15, but there is one correction here. Whatever the we can say, the maximum current we have to find, but after very long use, you know that very well, resistance becomes very large. In internal resistance here, suppose 380 ohm, then what's your we can say that target. So here you have to consider 380 ohm, and denominator is very large, so current is very small. So that's the correction, but conceptually very same और right, don't worry. So ये हमने देखा था पार्ट 7A का लास्ट नंबर 3.15. बट फ्रेंड्स यू नो दैट 7B वेरी IMP also because of parallel combination. तो अब अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये पार्ट, जो भी बेस्ट पार्ट है. सभी बंदों को विनती है कि अब 100% इधर ध्यान, क्योंकि ये थियरी है वो इस चैप्टर की मोस्ट टाइम पे थियरी में से एक थियरी मानी जाती है. सो प्लीज कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर. द पैरेलल combination of cells, you can see. Okay, parallel combination of cells थोड़ा जगह के लिए ऊपर डिस्कस करते हैं. So parallel combination of cells. Okay, parallel combination. So we'll think about once again two batteries, number 1 and number 2. Here EMF epsilon 1 and internal resistance R1. Here EMF epsilon 2 and internal resistance R2, and you can see these 2 points are connected here at point B2. This is point B1, this is A, and this point is B. मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही वापस पूरा डिस्कशन करूंगा, बाद में जे डबल नीट. सो ऑब्वियसली फॉर फर्स्ट बैटरी हियर करंट कम्स आउट फ्रॉम द फर्स्ट बैटरी, इट इज I1. हियर करंट कमिंग आउट ऑफ द सेकंड बैटरी, इट इज I2. दे बोथ गेट कंबाइंड एट दिस पॉइंट B1, and you can see that here total current is I. So obviously here total current, if you think about the diagram, then it is clear total current is I1 plus I2. रेडी? ओके, सबसे पहले मुझे फर्स्ट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज लिखना है. सो दोनों बैटरीज पैरेलल में, मतलब दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, यानी कि मैं VB1 माइनस VB2 लिखूं या VB1 माइनस VB2 दूसरी बैटरी के लिए लिखूं, सेम. सो टर्मिनल वोल्टेज रिमेन सेम. व्हाई? बिकॉज व्हाटएवर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स फॉर फर्स्ट बैटरी and whatever the potential difference across these 2 points for the second battery, same, because they both are in parallel. So you start the next point here. V is equal to, पता चला V for first battery लिखते हैं. Here for first cell, what is the potential difference V? So V is equal to, अपन लोग टर्मिनल वोल्टेज लिखते हैं, फर्स्ट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला करंट बाहर आ रहा है, मतलब एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1. तो ये देखो, एंड फॉर सेकंड सेल व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज फॉर द सेकंड बैटरी? टर्मिनल वोल्टेज रिमेन सेम बिकॉज दे बोथ आर इन पैरेलल, बट हियर एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2. ओके, चलो अब देखना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. Here from first equation I can write here I1 R1. Okay, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से अपन लोग I1 को इस साइड ले आए तो क्या होगा? इक्वेशन देखो, I1 R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V. ये देखो, ये इस साइड और V इस साइड. So obviously what happen with the I1? It is epsilon minus V upon R1. I1 in the form of subject. Similarly, ये वर्ड बहुत ही IMP. Similarly, we can write I2 is equal to epsilon 2 minus V upon R2. इसमें से I2 को सब्जेक्ट फॉर्म में ला दिए देखो. So obviously from first equation, you can see from first equation I1 in the form of subject, and from the second equation I2. कोई बोले ये सब रट्टे मार के आते हो इसलिए आप धूम मचाते हो, हमें कैसे पता चले? आपको पता लगाने की जरूरत नहीं, ये इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है. इफ यू वुड लाइक टू फाइंड टोटल करंट
find out I1 I2 and that's why I have found I1 I2. So I1 I2 अपने पास आ गए. Now we'll use these values here. So total current I is equal to I1, it is already with us, epsilon minus V upon R1 plus I2 epsilon 2 minus V upon R2. अब अपन लोग थोड़ा और दिशा कह सकते हैं कि डिस्कशन आगे बढ़ा है. सो एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन हियर. यू कैन सी दैट इंडिविजुअल डिवीजन. नाउ अपने को जिसे कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है टोटल. तो सबसे पहले अपन लोग ऐसा करते हैं, देखो V बाई R1 इसको इस साइड और इसको भी इस साइड ले आए तो V अपॉन R2 हो जाए. And now here epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 minus I. Understand or not? Just check it. देखो ये दोनों एरोस बता रहे हैं, दोनों टर्म इधर, so minus becomes plus and this I get transferred, so this I becomes minus और ये दोनों टर्म्स आपके इधर है. देखो ओके, एक कदम आगे. So now V कॉमन निकालो तो इधर 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2 और इसको मैं धीरे से ब्रैकेट में लिख दूं एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस I. एनी डाउट? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका सिंप्लीफिकेशन में इधर कर देता हूँ, स्टेज जिसे कह सकते हैं थोड़े स्टेप कम हो जाए. तो इसका एलसीएम ले तो क्या होगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. रेडी? अब इस टर्म को इस साइड, क्योंकि हमें V में इंटरेस्ट है, वी वुड लाइक टू फाइंड ओनली टर्मिनल वोल्टेज लाइक सीरीज, सो V शुड बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सो दिस एंटायर टर्म गेट ट्रांसफर्ड. सो देखो एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 अपॉन ये आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 माइनस I, क्योंकि ये टर्म है वो इसको भी और ये दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा. इतना कॉमन सेंस यू नो दैट वेरी वेल आपके पास है. तो ये इंडिविजुअल डिवीजन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहले कंप्लीट डिनोमिनेटर में नहीं, डायरेक्ट इसको डिवाइड किया है टर्म को और I को इससे डिवाइड किया. तो ये पूरा टर्म है वो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. नाउ यू अंडरस्टैंड. अब इधर जिसे कह सकते पहले अपन लोग एलसीएम ले तो क्या होगा. देखो नाउ V इज इक्वल टू एलसीएम ले, सो एप्सिलॉन 1 into R2 एंड प्लस एप्सिलॉन 2 R1. डिनोमिनेटर में क्या आएगा R1 into R2. ये R1 into R2 इस R1 R2 के साथ कट हो जाए तो बचेगा सिर्फ R1 प्लस R2. देखो पता चला R2 इधर मल्टीप्लाई किया, R1 इधर, इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम इसके साथ कैंसल. सो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 into R1 अपॉन R1 प्लस R2. इसी तरह ये टर्म गुलाटी मार के ऊपर तो इधर ऐसा हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस. जस्ट चेक इट. ओके, तो ये अपना इक्वेशन बना, जानदार शानदार इक्वेशन. दिस इज यू कैन सी द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स इधर और इधर, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पीडी ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू बैटरीज, बट दिस टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ऐसा इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था पार्ट 7a में फॉर सीरीज. तो इसको अपन लोग लिखे y is equal to epsilon equivalent minus I or R equivalent, you can see. If you compare these equations, so this is your net EMF और ये बनेगा आपका net resistance. So net EMF का फॉर्मूला होगा epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 अपॉन R1 plus R2. मार्वेलस इक्वेशन है, देखना. और नेट रेजिस्टेंस है वो तो बहुत इजी, क्योंकि दो पैरेलल में हो तो सीधा लिख सकते हैं. इसका जो भी खेल है वो ये नेट ईएमएफ ही है. रेजिस्टेंस तो पैरेलल का अपन लोग फाइंड कर सकते हैं. सीरीज में इजी था, सीरीज में दो बैटरीज अगर सीरीज में हो तो उसका ईएमएफ फाइंड करना बहुत ही इजी. अगर वो हेल्पिंग कंडीशन में है तो दोनों बैटरीज का ईएमएफ ऐड करेंगे, अगर वो ऑपोजिट कंडीशन में है तो दोनों बैटरीज का ईएमएफ कैंसिल यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बैटरीज का नेट ईएमएफ ये इक्वेशन से दिया जाएगा. ये याद ना रहे तो ये भी याद रख सकते हो. देखो ये एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 ये अपन लोग लिखते हैं, डोंट वरी. मगर ये इक्वेशन मोस्ट टाइम पे इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस इक्वेशन गिव्स आइडिया अबाउट
terminal voltage across these 2 points for the combination of 2 cells in parallel. This is your net EMF for the combination of 2 batteries in parallel. This is the net resistance for the combination of 2 batteries in parallel. Most IMP. अब अपन लोग ये देखो फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनालाइज एंड देन विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट. पैरेलल कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट. पहले एक बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. These are the two batteries having EMF epsilon 1 epsilon 2, internal resistance R1 R2, but they are connected in parallel. यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से I2, यहाँ पे दोनों का संगम, तो I बनेगा ये दोनों का एडिशन. ये इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कृपया I फाइंड करना हो तो I1 और I2 फाइंड करो. मगर कुछ लोग यहाँ से I1 I2 फाइंड करते ही नहीं, क्योंकि जब ये बंदा चिल्लाते हैं तो वो लोग सुनते नहीं. तो I1 फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किया, एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1. सेकंड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें से I1 को सब्जेक्ट फॉर्म में लाए, इसमें से I2 को. बस यही थीम याद रखने की, दो इक्वेशन में से I1 I2 सब्जेक्ट फॉर्म और उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देने का मेन. अब इसमें से इंडिविजुअल डिवीजन किया, V वाले टर्म को इस साइड ले आए, I इस साइड, क्योंकि अपने को V में दिलचस्पी है. V कॉमन, इसमें से यू कैन सी दैट माइनस I, इसका एलसीएम लेके इसको इस साइड भेज दिया. सो दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म एंड I आल्सो डिवाइडेड बाय दिस टर्म. तो इसके नीचे मैंने देखो ये रख दिया, मगर इसका मैंने एलसीएम लिया एप्सिलॉन 1 into R2 एप्सिलॉन 2 into R1, ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है R1 R2 वो इस डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए और एक पॉइंट. और इधर तो बहुत इजी है, गुलाटी मार के ऊपर. दिस इज योर नेट ईएमएफ फॉर द कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल सेल and this is the net resistance for the combination of cells in parallel. very very IMP point. इसको मैं सिर्फ इतना लिखना चाहूँगा, whenever two batteries are connected in parallel, then what is the net EMF? Most important, net EMF can be found, or potential difference across two terminals be net EMF is equal to epsilon 1 R2 plus एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ऐसा याद ना रहे तो आपसे ये याद रखने का, एप्सिलॉन बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2. मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज कॉल्ड धूम फॉर्मूला. ये याद रखने का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट. इसको याद रखना है. अपॉन जिसे कह सकते हैं कि ये R1 प्लस R2 वाला फंडा है, वो भी अपन लोग रखते हैं. सॉरी, देयर इज, यू कैन सी दैट अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये इस तरह. तभी ये इसका एलसीएम लोगे तो कैंसिल. तो ये आपका जिसे कह सकते हैं नेट ईएमएफ बनेगा. मगर अपन लोग ज़्यादातर जिसे कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं. देखो ये नेट ईएमएफ ही था, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 डिवाइड बाय फिर R1 प्लस R2 R1 R2. तो आपको ये फॉर्मूला से दिमाग में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब इसका जिसे कह सकते हैं JEE नीट शॉर्टकट डिराइव करते हैं, ये याद रखने का है. रेडी, ये भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट, मोस्ट IMP, क्योंकि आज अपन लोग इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं. अब देखो इसका JEE नीट, जैसे सीरीज के लिए इसी तरह पैरेलल के लिए JEE नीट फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. सपोज n number of cells, how many number of cells? N, having same EMF epsilon and same internal resistance R. This type of n number of cells having same EMF, same internal resistance are connected in parallel. Then what's the current? देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर. और ये डायग्राम इज मेन है. सपोज दिस इज योर बैटरी नंबर 1, देन नंबर 2, एंड दिस टाइप ऑफ यू कैन सी 1 to n number of cells, EMF epsilon epsilon epsilon, internal distance R R and R. अब इसके साथ ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ R. इसमें से सब में से करंट बाहर आएगा, इधर कंबाइन होगा और टोटल करंट होगा I. अपने को ये I फाइंड करना है. चलो, तो मैंने वापस लास्ट टाइम भी इक्वेशन डिराइव किया था, इधर भी इक्वेशन डिराइव करते हैं. डोंट थिंक अबाउट
रट्टेबाजी, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। करंट, टोटल करंट का फॉर्मूला बिंदास, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब टोटल ईएमएफ फाइंड करते हैं। ये बैटरीज का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन। तो एक बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन, ऐसी एन बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट की हो तो टोटल ईएमएफ कितना हो। जाहिर सी बात है एन एप्सिलॉन, ऐसा आपके दिमाग में आया होगा, ये रॉन्ग है। इसीलिए चिकना केस, चेक द टाइप ऑफ कनेक्शन पैरेलल। in case of parallel, all batteries are connected in parallel, resistor parallel, capacitors parallel. For parallel combination EMF और potential remains constant. तो इसका पोटेंशियल सेम ही रहेगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। सो टोटल ईएमएफ एप्सिलॉन, बहुत ही आईएमपी, क्योंकि ये सभी बैटरीज किसमें है, पैरेलल में, तो ईएमएफ रिमेन सेम। नाउ टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी पैरेलल में है, तो 1/r प्लस 1/r अप टू n। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल n/r, मगर गुलाटी मारो तो r/n, तो प्लस r/n। देखो ये पता चला नहीं, हर एक रेजिस्टर पैरेलल में, पैरेलल के लिए n नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए r/n। सो दिस इज योर करंट, दिस इज द धांसू फॉर्मूला फॉर एमसीक्यू, डोंट फॉरगेट। बट इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस, whenever n number of cells are connected in parallel having same EMF and same internal resistance, then you have to apply these shortcuts directly, most important. Just analyze and then we'll think about the next point. तो बोले ये केस के बाद एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज समटाइम्स यू कैन सी दैट दे प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जोरदार सिचुएशन है। सपोज दिस आर द टू बैटरीज having EMF epsilon 1 and internal resistance R1. There is another battery having EMF epsilon 2, internal resistance R2, and they both are connected in parallel, you can see. And now there is external resistor R is connected. ये situation बहुत ही famous, very very IMP for JEE NEET। तो इसको जरा ध्यान, और मैं जो इधर बोर्ड पे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसको तुरंत ही नोटबुक में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे लेता जो बहुत ही वीडियो पढ़ा देखेंगे, ऐसा नहीं, तुरंत ही नोटबुक में कन्वर्ट करो। बी ग्रुप वाले तो खास, और JEE में जिसको आगे बढ़ना है वो ऐसे क्वेश्चंस और शॉर्टकट्स को तुरंत ही एक नोटबुक में लिखते जाए साथ में। सो इसका करंट फाइंड करना हो तो इसका शॉर्टकट होगा एप्सिलॉन 1/r1 एप्सिलॉन 2/r2 r 1/r1 प्लस 1/r2। मोस्ट IMP शॉर्टकट, वेरी वेरी IMP। ये पी जाओ, इसको पूछेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमने जो डिस्कस किया था इसके जैसा ही है, ये देखो कोई फर्क नहीं है, डोंट फॉरगेट, मोस्ट IMP, जस्ट चेक इट। तो मुझे ये फॉर्मूला चकाचक चाहिए, इसका भी यूज़ बड़े पैमाने पे होने वाला है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे कह सकते हैं R है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये EMF। ओके, तो इतना अपने को याद रखना है। ये दोनों कंसेप्ट को अब अपन लोग अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। मगर इससे पहले एक और कनेक्शन देखते, बोले अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है। सीरीज देखा हमने देखा पैरेलल, अब अपन लोग देखने जा रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी मिक्स्ड भजिया। अब सब कुछ मिक्स, सीरीज पैरेलल सब साथ में, ये सब JEE NEET चल रहा है, डोंट फॉरगेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फिर इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। मस्त मस्त क्वेश्चंस खास सिलेक्ट किए मैंने, स्पेशली कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए। नाउ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, mixed combination of cells, just concentration required. Suppose there is a battery having EMF epsilon and internal resistance R। फिर ऐसी दूसरी बैटरी देखो, ऐसी n नंबर ऑफ बैटरीज है, 1 2 और n number of batteries are connected in which way, series। this is one row we have formed। अब ऐसा दूसरा रो देखो, 1 2 and n, रेडी। इस
इस तरह ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 डैश डैश से सपोज m number of rows are connected in parallel like this one. पता चला n नंबर ऑफ सेल्स, इतना याद रखने का है ये कॉन्सेप्ट के लिए. n नंबर ऑफ सेल्स and m represent number of rows. Ready? n number of cells are connected in series. This type of how many number of series connected in parallel? एक रो, दो, ऐसी m जितनी रोज पैरेलल में कनेक्ट की है. और देखो करंट का फॉर्मूला जरा देखो कैसे करंट बनेगा. तो सब में से करंट बाहर आएगा और वो करंट है वो एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ इस तरह कनेक्टेड. देखो इसमें से करंट पास होगा. तो ये करंट फाइंड करना है. सो हाउ कैन यू फाइंड करंट? करंट यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. चलो ईएमएफ काउंट करते हैं. तो EMF epsilon epsilon, this all batteries are connected in series. हेल्पिंग और ऑपोजिट. पहले तो सीरीज आया तब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. हेल्पिंग और ऑपोजिट. चेक करो इधर सभी हेल्पिंग में. हेल्पिंग में हो मतलब एडिशन. तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन n टाइम्स. सो n एप्सिलॉन. एक रो का EMF है n एप्सिलॉन. चलो इसका दूसरे का क्या होगा? n एप्सिलॉन. तो ऐसी कितनी रोज है? कोई बोले m, तो m n एप्सिलॉन हो जाए? नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी एक रो का जो EMF वो सभी के लिए सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि ये सभी रोज किस तरह कनेक्ट है? पैरेलल. सेल सीरीज में था इसलिए, मगर बाकी सब रोज पैरेलल में. सो पैरेलल के लिए EMF रिमेन सेम. तो इसका EMF होगा n एप्सिलॉन. अब EMF फॉर्मूला देखो इधर. I is equal to total EMF upon total resistance. What is the total resistance? तो पहले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R रखी दे. R प्लस प्लस अब ये पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस. तो देखो ये R, ये सभी इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह है? सीरीज में. सीरीज में तो अपन लोग जानते हैं डायरेक्ट एडिशन. सो R प्लस R अप टू n. तो एक रो का रेजिस्टेंस होगा NR, दूसरी रो का NR, तीसरी रो का NR. इस तरह m रोज का NR हो तो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो नेट रेजिस्टेंस के लिए अपन लोग इधर यूज करते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस. तो अपन लोग जानते हैं एक का कितना है NR? 1/NR होगा ना पैरेलल, इसलिए 1/NR प्लस 1/NR अप टू वी कैन से दैट m. सो 1/R नेट होगा m/NR. मगर गुलाटी मारो तो होगा NR बाय m. उठा के इधर रख दो NR बाय m. अगर m मल्टीप्लाई करे तो mn एप्सिलॉन mr plus nr. This is the most IMP formula for you can see mixed combination. मुझे ये दिमाग में चाहिए और रट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं. डिराइव भी कर सकते हो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए. सो दिस इज द मोस्ट IMP पॉइंट यू कैन सी. अब सभी पॉइंट वापस एक बार देखते. सीरीज तो अपन लोग जानते हैं डायरेक्ट एडिशन. अगर हेल्पिंग हो तो ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे. पैरेलल के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग केस का. पैरेलल अगर अच्छी तरह देखा जाए तो एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 EMF अपॉन R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 रेजिस्टेंस. उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. ये कोई भी कॉम्बिनेशन दे आपसे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, उसमें अगर आपको मैक्सिमम करंट पूछे, ये देखो मैं जो कहने जा रहा हूँ जेडब्ल्यू नीट टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट और टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर, which condition we have to satisfy? This is the most IMP point. Internal resistance becomes equal to external resistance. Internal resistance of the given system becomes equal to external resistance. Then and then what happen? Then and then power or current becomes maximum. ये मैंने अभी दिया है, मगर अपन लोग इसको डिस्कस करने वाले, डोंट वरी. तो फ्यूचर में अपन लोग हीट और पावर में जाएंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ. मगर ये तो इसके साथ कनेक्शन है इसलिए बोला. तो ये 3 फॉर्मूले फ्रेंड्स वी डिस्कस. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन है वो सोल्व करना शुरू करते हैं. सो जस्ट वी कैन से दैट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट अब रीजन में अपन लोग एंट्री लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में NCERT में इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रिलेटेड मोस्ट ऑफ जिसे कह सकते क्वेश्चन नहीं है. तो
एक भी क्वेश्चन, एक 6 जो अपन लोगों ने सेल देखा था वही था, सीरीज वाला हमने डिस्कस किया वो, बाकी नहीं। मगर पैरेलल का कॉम्बिनेशन किस तरह अप्लाई होता है वो अपन लोग शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। सो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन एम्स 2015 बी ग्रुप वाला, चलो जस्ट बी अलर्ट। तो क्वेश्चन मैं इधर देने जा रहा हूँ, आपको ट्राई करनी है। ये क्वेश्चन काफी तरीके से सोल्व होगा, मगर अभी अपन लोग सेल का कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू सोल्व करेंगे। बाद में मैं ये क्वेश्चन और तरीके से भी सोल्व करके बताऊंगा। 5 ओम, देयर इज अ 12 वोल्ट बैटरी, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट बैटरी, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू 5 ओम? दिस इज योर टारगेट। फाइंड करंट पासिंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का भी पार्ट है, डोंट वरी, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, तो देखो, here you can think about the cells. There is, you can see that number 1 and number 2, these are the two batteries. अभी बैटरीज का कनेक्शन किस तरह है वो जरा देखो। जिस लोगों को ना पता चले वो देखे जरा एक्स और वाई। सबसे पहले अपन लोग जानते हैं बैटरी का, फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव पोल एक्स के साथ है और सेकंड बैटरी का भी पॉजिटिव पोल एक्स के साथ है। तो मैं देखो फर्स्ट बैटरी इधर ड्रॉ करता हूँ जिसका ये पॉजिटिव पोल है, उसको मैं जिसे कह सकते हैं एक्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, एक्स। अब जिसे कह सकते हैं कि सेकंड बैटरी, तो सेकंड बैटरी का भी पॉजिटिव पोल है, सेकंड बैटरी जिसका ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड बैटरी का पॉजिटिव पोल भी एक्स के साथ, तो सेकंड बैटरी का भी पॉजिटिव पोल एक्स के साथ आ गया, ये एक्स के साथ। अब दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स देखो वाई के साथ, तो दोनों के नेगेटिव पॉइंट से वो पॉइंट वाई के साथ कनेक्ट कर दिए। अब बचा कौन सा, दोनों बैटरीज आ गए, एक्स और वाई के बीच में 5 ओम, सो देयर इज एक्स, देयर इज वाई, ये दोनों के बीच में ये रहा अपना 5 ओम, याद आया? तो ये आपका 12 वोल्ट 2 ओम रजिस्टर, 12 वोल्ट 2 ओम रजिस्टर, दिस इज योर बैटरी 1, बैटरी 2, एंड करंट यहाँ से बाहर आएगा, टोटल करंट होगा आएगा। तो अपने को करंट, अब देखो दोनों बैटरीज का ईएमएफ चेक करो, चेक द ईएमएफ ऑफ द बोथ बैटरी, सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। तो हमने इसका शॉर्टकट दिया हुआ, व्हेनेवर n नंबर ऑफ बैटरीज having same EMF and same internal resistance are connected in parallel, then what's the current? Then current I is equal to, याद करो, EMF epsilon upon R plus 1 upon R, 1 upon R, ऐसा आपने लोगों ने n टाइम्स देखा था, n नंबर ऑफ सेल्स के लिए EMF तो सेम ही रहेगा, मगर 1 upon R plus 1 upon R up to n, so n by R यानी R by n। देखो मैंने जिस तरह डिराइव किया इस तरह डिराइव कर लेने का, n नंबर ऑफ सेल्स के लिए पैरेलल में होता है। ये शॉर्टकट हमने लिखा हुआ है मोस्ट IMP फॉर पैरेलल। सो स्टार्ट करंट EMF, व्हाट इज द EMF ऑफ बैटरी 12, सो 12 अपॉन R ऑलरेडी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इट इज 5 ओम, सो 5 यू कैन सी हियर 5 प्लस व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज 2, n representing number of cells, how many number of cells, 2 batteries are there, so here number of cells you can see 2, so answer आएगा 12, 2 by 2 1, so 5 plus 1 6, तो 12 by 6 यानी 2 एम्पियर। so what is the current passing through this 5 ohm resistor? कोई बोले सर ऐसा इक्वेशन याद ना है तो मैंने जनरल इक्वेशन पैरेलल के लिए दिया है, फेंको, डोंट वरी। ये इक्वेशन फेंको, चलो इसमें अप्लाई करते हैं। वन मोर, एप्सिलॉन 1 12, R1 है 2, एप्सिलॉन 2 12, R2 है 2 अपॉन R है 5 1, 1 अपॉन R1 यानी 1 by 2 plus 1 by 2। अब 12 by 2 6, 12 by 2 6 यानी 6 plus 6 5 5, 1 हाफ प्लस 1 हाफ, आधा सेव हो उसमें आधा सेव आए तो पूरा सेव यानी 1, तो 12 by 6 यानी 2 एम्पियर। तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन एम्स 2015, तो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, डोंट फॉरगेट। तो ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और अपने आप ट्राई करने, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ
अगर वो ना आए तो मतलब समझ लो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जिसे कह सकते हैं डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ. सो बी अलर्ट. सो एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. ये तो बहुत ही इजी फॉर्म में है. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. एंड इसको थोड़ा ऐसा दिया है, 2 volt बैटरी and 2 ohm resistor. This 2 ohm, that means internal resistance, don't worry. 2 ohm. And here external resistance 5 ohm. Once again find current. चलो अब इसका आंसर ना आए तो आपको आईना देखने का. Okay, so very easy. Answer काफी लोगों का आया होगा. You know that very well. Here once again the number of cells 2 having same EMF, same internal resistance. So I can apply some concept epsilon R plus R by N. Ready? So start. What is the current? I. EMF already 2 volt. Resistance already external resistance 5. Number of cells 2 and internal resistance 2. So 2 by 5 plus 1 यानी 2 by 6 यानी 1 by 3 एम्पियर. पता चला. तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी, ये कोई ऐसे फेंका हुआ क्वेश्चन है. दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन 2018 एम्स. यू कैन सी दैट बिफोर 2 years, और वी कैन से दैट जस्ट 2 years अगो. 2 साल पहले के एम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट आईएमपी. अगर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, वापस मैंने बोला होना चाहिए. अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है इसमें थोड़े फंस जाते हैं, तो ट्राई करने की है. चलो मैं आपके कंसेप्ट बने इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ. ट्राई करना क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं इसलिए. There is a 5 volt battery, 2 volt battery, there is a 10 ohm resistor, and this is 20 ohm resistor. Find the current of the circuit. What is the current of circuit? Start. Okay, what's the we can say that answer? This is very interesting. काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 ये दोनों इंटरनल डिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करके. सॉरी, इधर कोई एक्सटर्नल डिस्टेंस नहीं है, मतलब करंट इसमें लूप थ्रू घूमता रहेगा. यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है. यानी सबसे पहले करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. वापस मैं समझाता हूँ. इधर एक्सटर्नल डिस्टेंस होता तो करंट बाहर आता है, मगर ये करंट है देखो ऐसे ही घूमता रहेगा. दैट मींस दिस ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज द सेम मैग्नीट्यूड करंट फ्लो थ्रू दिस ईच एंड एवरी कंपोनेंट. सो टोटल ईएमएफ के लिए देखो 5 वोल्ट बैटरी, देयर इज 2 वोल्ट बैटरी. चेक द कनेक्शन. पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव पोल ऑफ द अदर बैटरी.
What is the type of connection? Helping or opposite? Opposite connection. Opposite connection. Then what happens with the EMF? Subtraction. So 5 minus 2. 5 minus 2. Total resistance 10 plus 20. So 5 minus 2, 3 by 30. 1 by 10 यानी 0.1 एम्पियर करंट। मस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी कभार काफी स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वायर है। ओके, ओ माय गॉड, इफ यू कनेक्ट ओनली वायर देन व्हाट हैपन? दिस इज द केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। इसलिए ध्यान रखना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हो तभी अपन लोग का वो कंसेप्ट होगा। ये कंडीशन में जिसे कह सकते सिंपली लूप कंसीडर करके अप्लाई करना है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन ध्यान रखना। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो मास्टरपीस है, सो डोंट फॉरगेट एंड बी अलर्ट। मोस्ट आईएमपी, ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ वो भी आईएमपी। इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट वी कैन से दैट एग्जाम। सो देयर आर 3 बैटरीज, 1 2 and 3, 2 volt 2 volt 2 volt and 0.5 ohm internal resistance for each battery. You can see here 3 batteries are connected, but by mistake third battery is connected. You can see that in wrong manner, positive negative but negative positive। ये concept मैं आज clear करवाने वाला हूँ। Whenever n number of cells are connected in series and out of n number of cells few cells, suppose x number of cells are connected wrongly, then what happen with the current? तो अपन लोग इसको जरा डिस्कस करने चाहते हैं। इसको पहले पूरा सर्किट कंप्लीट कर देते क्वेश्चन। इट इज कनेक्टेड विथ, यू कैन सी दैट 4.5 ओम रेजिस्टर। देन व्हाट इज द करंट? इसको तो अपन लोग आराम से सोल्व कर लेते हैं। देखो अपन लोग अपना बेसिक कांसेप्ट अप्लाई करेंगे। एक तो ये दोनों बैटरी से वो एक दूसरे के हेल्पिंग कंडीशन में कि ऑपोजिट यानी ये एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करें, या पहले हेल्पिंग का एडिशन कर दो, 2 + 2 4 -2। इन शॉर्ट 2 वोल्ट नेट ईएमएफ होगा। सो टोटल ईएमएफ होगा 2 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल ईएमएफ 2 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सो टोटल रेजिस्टेंस यानी 4.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस हाउ मेनी नंबर ऑफ बैटरीज? 3। and what is the resistance of each battery? Internal resistance of each battery 0.5, so 3 into 0.5, so 2 upon 4.5 plus 1.5, in short it is 2/6 यानी 1/3 एम्पियर। देखो मगर दोस्तों ये इतना इजी क्वेश्चन है नो डाउट, मगर कभी कभार ये जो रॉन्ग कनेक्शन में बहुत सारे सेल दे दे तब क्या करना है, तब का एक कंसेप्ट में दे रहा हूँ। मोस्ट IMP JEE नीट शॉर्टकट फॉर रॉन्गली कनेक्टेड सेल। तो मैं लिखता हूँ, जरा देखते जरा बराबर। when n number of cells are connected in series and x number of cells out of this n number of cells, suppose x number of cells are connected wrongly, or I can say that x number of cells are wrongly connected, then what happen? Then what is the current? तो देखो अगर सभी के सभी बराबर कनेक्ट हो जाते, एक भी रॉन्ग कनेक्ट नहीं होता तो सपोज इधर देखो ऐसा कनेक्ट होता तो सभी का एडिशन हो जाता ना, ईएमएफ का एडिशन हो जाए, सभी का ईएमएफ सेम है, डोंट वरी, ईएमएफ सेम है, डोंट फॉरगेट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स लिए जिसका ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। अगर सपोज एक भी सेल रॉन्ग कनेक्ट ना होता तो अपन लोग जानते हैं एक का ईएमएफ एप्सिलॉन, तो एन का कितना हो जाता है, एन एप्सिलॉन। मगर रॉन्ग सेल कनेक्ट होने के कारण ईएमएफ में क्या इफेक्ट आएगा? अगर आप देखो एक सेल हमने रॉन्ग कनेक्ट किया था इधर, तो एक सेल है वो दूसरे सेल की इफेक्ट है वो नलिफाई करता है, यानी 2 सेल स्वाहा, ये मोस्ट टाइम की। सो हियर आउट ऑफ 3 cells टेल मी द इफेक्टिव सेल, ओनली 1, 2 cells already cancel the effect of each other. That means if you connect one cell wrongly, then what happen? It affects, we can say that, or it affects 2 cell, or it cancel the effect of potential of 2 cell। मतलब इधर x नंबर ऑफ सेल्स रॉन्ग हमने कनेक्ट कर दिया तो टोटल जो ईएमएफ था n नंबर ऑफ सेल में से, पहले जो n एप्सिलॉन ईएमएफ था उसमें से
एक सेल हमने कनेक्ट किया, एक सेल के कारण 2 एप्सिलॉन ईएमएफ है वो सब्ट्रैक्ट होता है। देखो इधर देखो ना पता चले तो कितना 3 सेल था, तो हमने एक सेल रॉन्ग कनेक्ट किया तो ये दोनों का कैंसिल हो गया, मतलब बचा सिर्फ एक ज सेल का ईएमएफ। आप देखो तो अगर अपन लोग एक सेल रॉन्गली कनेक्ट करते हैं तो 2 बैटरीज का ईएमएफ खा जाता है, जैसे 2 बैटरीज का। तो अपने पास टोटल n एप्सिलॉन ईएमएफ था, उसमें से अगर हम लोग x नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्ट करें तो एक सेल के कारण 2 एप्सिलॉन जितना ईएमएफ कैंसिल होता है, तो x सेल के कारण कितना होगा 2x एप्सिलॉन जितना ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर वापस समझाता हूँ, टोटल अगर जिसे कह सकते हैं कि 3 सेल था उसका टोटल पोटेंशियल होना चाहिए 6, मगर एक सेल हमने रॉन्ग कनेक्ट किया तो -4 हो गया, बचा 2 वोल्ट। तो देखो एक सेल के कारण डबल पोटेंशियल हुआ, तो एक सेल के कारण डबल पोटेंशियल इन 2 एप्सिलॉन अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये सभी बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो NR का NR। तो ये शॉर्टकट को मैं फाइनल लिखूं n-2x एप्सिलॉन अपॉन R प्लस NR। This is the most IMP formula or shortcut for JEE NEET. In which circumstances we have to apply? Whenever n number of cells are connected in series, but out of this n number of cells, if x number of cells are wrongly connected, then what happen? Then current of the circuit can be found by this equation. इधर देखो अब ये करंट मैं इस शॉर्टकट थ्रू फाइंड करता हूँ। टेल मी द नंबर ऑफ सेल्स इन आर केस 3, सो n की जगह 3 -2। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली 1, एक सेल हमने रॉन्ग कनेक्ट किया तो 1। ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, इट इज ऑलरेडी 2 वोल्ट, सो 2। कैपिटल आर है 4.5 इनटू नंबर ऑफ सेल्स है 3, स्मॉल आर है 0.5, सो 3 - 2 यानी 1, 1 × 2 यानी 2, और इसका सिंप्लीफिकेशन तो ये रहा, अपन लोग जानते 6, आंसर आ गया 1/3। सो सेम टू सेम, बट द मास्टरपीस फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये शॉर्टकट खास याद रखना, मैंने बोला ऐसे सब जितने भी शॉर्टकट्स आए वो आपको कन्वर्ट करते जाना है नोटबुक में, बार बार रिवाइज करो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज पूरा जो पार्ट है 7-7B वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर है। अभी भी अपन लोग इसमें जाएंगे और लेवल टू लेवल जब पेपर सॉल्यूशन में जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अपन लोग पेपर सॉल्व करें, काफ़ी स्टूडेंट्स पेपर देते हैं मगर पेपर देना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो जरा देखो। इसीलिए हमने जो सुपर 40 की सीरीज रखी थी पार्ट 1 पार्ट 2, उसको बार बार देखो और लॉजिक क्लियर करने की कोशिश करो। तो आज जो हमने क्वेश्चन किए वो अच्छी तरह एनालाइज करो और हर लेक्चर को तुरंत ही जिसे कह सकते हैं कि अपनी नोटबुक में कन्वर्ट करना कोशिश करो, अपने आप ट्राई करो, हर एक क्वेश्चन सोल्व करो अपने आप और देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। यही लॉजिक क्लियर करने का फंडा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर वंस अगेन विल थिंक अबाउट द मोस्ट टाइम पॉइंट, और आने वाला लेक्चर यानी पार्ट 8 है वो माशाअल्लाह है, क्योंकि किरचॉफ्स रूल अपन लोग जाने वाले, बड़े बड़े नेटवर्क्स को डिस्कस करने वाले। सो बी अलर्ट अबाउट इट, मगर ये भी बहुत ही एमपी। सो नेक्स्ट टाइम विल मीट विथ वी कैन से दैट सम मोस्ट एमपी पर्सन। थैंक्स।